Good morning, students. Myself, Rajiv Verma, is going to continue chapter number 4 of class 12 physics. And in the continuation, today's topic is a relation between mu naught, epsilon naught, and C, where the symbols are having their usual meanings. You know that mu naught is the permeability of the free space, epsilon naught is the permittivity of the free space, and C with the speed of light. So, to obtain the relation between these parameters, what we can do, actually we know that, what we know, that 1 upon 4 pi epsilon naught is having a numerical value, and this is 9 into 10 raised to the power 9 Newton meter square per Coulomb square, यानी Newton meter square c raised to the power -2 we can say. Okay, similarly we are also having the value of mu naught upon 4 pi, and the value of this is 10 raised to the power -7 tm a raised to the power -1. अगर हम इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1 and this is suppose equation number 2, then by simplification we can find the relation between them. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर we can divide equation number 1 by 2. इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 1 by 4 pi epsilon naught and divided by 2, तो ये हो जाएगा mu naught upon 4 pi. 4 pi will be here. Okay, now in the right hand side we are having the value 9 into 10 raised to the power 9 divided by 10 raised to the power -7. Okay, now these 4 and pi's are cancelling out, and you can write here mu naught epsilon naught is equal to, इसे सिंपलीफाई करते हैं तो 9 into 10 raised to the power 9, 7 पावर माइनस की है, ऊपर जाएगी तो इट विल बी पॉजिटिव 1, and 9 plus 7 is 16, तो ये हो गया 9 into 10 raised to the power 16. ठीक है, यानी हमने इन दोनों पैरामीटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ इक्वेशंस मान ली, इनको सिंपलीफाई कर रहे हैं, एक को दूसरे से डिवाइड कर दिया, एंड वी गॉट दिस रिलेशन. अब आगे बढ़ते हैं कि we can also write it as mu naught epsilon naught will remain same. ये तो ऐसे ही रहा, इसको हम लिख सकते हैं 3 into 10 raised to the power 8 whole square. देखो जरा कि 3 square is 9, 10 raised to the power 8 square is 10 raised to the power 16. ऐसा हमने क्यों लिखा? Because we know that 3 into 10 raised to the power 8 is also equal to c, which is the speed of light. Speed of light in vacuum. ओके, तो हम इसे म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 3 into 10 raised to the power 8 को हमने क्या कर दिया, हमने सी पुट कर दिया. क्यों करा? क्योंकि 10 to the power 8 स्पीड ऑफ लाइट है और उसके लिए सिंबल हम सी यूज करते हैं. अगर ये स्क्वायर को रिमूव करें तो दिस एक्सप्रेशन विल बी कंप्लीटेड एज 1 upon म्यू नोट एप्सिलॉन नोट. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन permeability, the permittivity of the free space and the speed of light. तो हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू होना था इस चैप्टर के अंदर, इससे पहले का मैं सब कुछ करा चुका था, एंड वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, and our next topic is the magnetic field. Magnetic field at the center of a current carrying circular loop. Magnetic field at the center of current carrying circular loop. So for this, what we have done, consider a current carrying loop carrying a current I. हमने एक सर्कुलर लूप कंसीडर करा, इससे I करंट फ्लो हो रहा है. OB the center of the loop, RB the suppose radius of the loop. Here consider a small current element of length dl. Okay, tangentially डायरेक्शन dl की क्या है? टेंजेंट एट दिस पॉइंट. ओके, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस.
ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फिर दोबारा से मैं बताता हूं कि व्हाट वी हैव डन, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड हियर। दिस इज अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या क्या कंसीडर करा, आर रेडियस का लूप मान लिया, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप मान लिया, और इसमें सबसे पहले हमने माना एक स्मॉल एलिमेंट है डीएल। अब हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ से इस डीएल एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग एट पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, देन वी कैन टेक द इंटीग्रल ऑफ दैट, तो कंप्लीट लूप का मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट, कहां से स्टार्ट करें, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ द magnetic field at O due to current element dl, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू करंट एलिमेंट इज, और किसके अकॉर्डिंग, बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin 90 अपॉन आर स्क्वायर। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है करंट एलिमेंट पोजीशन वेक्टर के आर के परपेंडिकुलर है, सही है, ये पोजीशन वेक्टर है जो ओ की पोजीशन को बताता है, ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin 90 इज 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, क्या आया, ये मैग्नेटिक फील्ड आया ओ पॉइंट पर, लेकिन किसकी वजह से आया, इस करंट एलिमेंट की वजह से। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कंप्लीट लूप के लिए निकालना है, कंप्लीट कॉइल के लिए निकालना है। कंप्लीट कॉइल का मतलब है डीएल लेंथ विल वेरी, डीएल लेंथ कहां तक वेरी करेगी, जो मैक्सिमम यहां पर एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम कितनी लेंथ एग्जिस्ट करेगी, जो सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप होगी। अगर ये लूप आर रेडियस का है तो मैक्सिमम लेंथ 2 पाई आर एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप कहलाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू द कंप्लीट लूप, कंप्लीट लूप। तो इसे हम लिख देते हैं b, किसके इक्वल होगा ये, इंटीग्रल db के, यानी इसका इंटीग्रल, यानी हम ये मान रहे हैं कि दिस कंप्लीट लूप इज एग्जिस्टिंग और कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, उन सब का सम कर दें, इंटीग्रल का मतलब क्या, उन सब के मैग्नेटिक फील्ड का सम कर दें, तो विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट लूप। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल db की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जो टर्म कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम इस इंटीग्रल से बाहर निकालते हैं, जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, आर स्क्वायर भी रेडियस ऑफ द लूप इज नॉट चेंजिंग, क्या बचा, डीएल बचा, तो इंटीग्रल डीएल बचा, सही है। और इट मे बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इनटू, इंटीग्रल डीएल का मतलब है इसकी लेंथ जो कि 2 पाई आर है। अब ये पाई से ये पाई कैंसिल, 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल, आर से पावर कैंसिल, तो हमारा एक्सप्रेशन बना म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो दिस इज, यानी b इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं b इज इक्वल टू म्यू नॉट I upon 2r is the magnetic field at the center of the current loop, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑब्टेन कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर इनवर्स, राइट हैंड स्क्रू रूल यहां पर अप्लाई करिएगा, if we are rotating the screw in the direction of dl cross r, then the direction in which the screw advances will give the direction of the magnetic field। ये क्रॉस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी,
perpendicular inwards to the plane of the board or the paper. Okay, तो ये इसके डायरेक्शन हो गई. So we have calculated the magnetic field at the center as well as the direction of the magnetic field at this point. In the next topic we are going to obtain the magnetic field at any point P on the axis of the current loop. Okay, now coming to the next topic, magnetic field at the axis of the circular current loop. यानी इस बार हमने क्या कंसीडर किया है, सपोज दिस इज अ सर्कुलर करंट लूप carrying a current I in the anti-clockwise direction. Suppose O be the center of the loop and E be the radius of the loop, and suppose there is a point P on the axis of the loop where we wish to calculate the magnetic field due to the current loop. इससे पहले एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, we have calculated the magnetic field at the center. इस बार हम क्या कर रहे हैं, we are going to calculate the magnetic field on a point P at a distance r from the center of the dipole and on the axis. ये लूप कैसे है, this is perpendicular to the plane. तो हमने इसके लिए क्या किया, suppose a small current element of length dl, हमने एक dl current element इसमें कंसीडर करा एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एट दिस पॉइंट. तो हमने इसको इससे पीछे ज्वाइन करा, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, यानी ये इसके परपेंडिकुलर होगा. यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ये इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया s है, सही है. इफ वी कंसीडर दैट दिस एंगल इज फाई, देन देयर मस्ट बी two components of the magnetic field. One is dB cos phi, another one is dB sin phi. ये दो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे. तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट, ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट दिस पॉइंट P. तो मैग्नेटिक फील्ड at P due to current element dl. तो ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय बायोट सेवर्ट्स लॉ. बायोट सेवर्ट्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे तो dB इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. फार्मूला है आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. r की जगह इस बार क्या है, s है, तो s स्क्वायर. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन s स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. अब एज दिस करंट एलिमेंट इज परपेंडिकुलर ऑन s, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये dl करंट एलिमेंट s पर परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर थीटा क्या होगा, 90 डिग्रीज. थीटा 90 होगा तो अबव एक्सप्रेशन विल बी रिटन एज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन s स्क्वायर और sin 90. एज वी नो दैट sin 90 इज इक्वल टू 1, तो दिस विल बी 1. तो ये एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन कर लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट. बट एज द मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग इन दिस xy प्लेन, तो दैट इज व्हाई देयर मस्ट बी टू कंपोनेंट, जैसे कि मैंने मेंशन भी करा dB cos phi dB sin phi. तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पर, वो इन कंपोनेंट्स पर ही डिपेंड करेगा, यानी जो ये कंपोनेंट की वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे वही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर होगी. लेकिन ये जो dB cos phi है, दिस मे बी कैंसिलिंग आउट बाय एज्यूमिंग अ करंट एलिमेंट अपोजिट टू दिस एलिमेंट. इसके अपोजिट अगर एक करंट एलिमेंट और कंसीडर कर लें तो यहाँ पर एक और ये पॉइंट dB एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर ये dB cos phi और ये dB cos phi, बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. तो दैट इज व्हाई दीज टू विल बी कैंसिलिंग आउट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड
at P due to the loop of radius A, B may be written as integral dB sin phi। अब क्या होना चाहिए, dB sin phi, dB sin phi होना चाहिए, dB sin phi, है ना। लेकिन जब हम इंटीग्रल ले रहे हैं तो इसका मतलब वी आर कंसीडरिंग द होल लूप को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, इंटीग्रल dB sin phi यहाँ पर ले लिया। फिर दोबारा मैं इस बात को बताता हूँ कि P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना था उसमें ये 1 2 3 4 these 4 कंपोनेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल। तो सबसे पहले तो हमने dB की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, dB की वैल्यू यहाँ पर ये ऐसे, तो यहाँ पर भी ये ऐसे होगा। तो इस करंट एलिमेंट, ये दोनों इक्वल अपोजिट करंट एलिमेंट है, तो इसके दो दो कंपोनेंट हमने मान लिए जो कि बिल्कुल सेम है। लेकिन dB cos phi, dB sin cos phi जो है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों कैंसिलिंग आउट हो जाएंगे और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्टेड है, तो ये इनकी वजह से यानी dB sin phi और dB sin phi की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू द लूप। अब जब पूरे लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे तो इंटीग्रल ले सकते हैं, इंटीग्रल dB sin phi, इंटीग्रल के अंदर सब कुछ एग्जिस्ट कर गया, इसे हमें दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है कि dB sin phi plus dB sin phi, it is not like that because these two, the sum of these two will be the magnetic field due to these two elements only, and we have to calculate the magnetic field due to the complete loop, that is why it is integral dB sin phi। now we are substituting the values of dB sin phi here, dB की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, mu naught upon 4 ideal upon s square, sin phi can be calculated from this triangle, sin phi मतलब perpendicular upon hypotenuse यानी a upon s, तो ये हो गया a upon s। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं जिसमें कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालता हूं, mu naught upon 4 pi इंटीग्रल से बाहर आ गया, i भी कांस्टेंट है, s की पावर 3 कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल gl बचा और इंटीग्रल के लिए क्या होगा, सर्कमफ्रेंस 2 pi r, यहाँ पर a रेडियस है तो 2 pi a, तो ये जो फार्मूला हुआ हमारा mu naught upon 4 pi I a upon s cube into dl is 2 pi a, ये हमारा फार्मूला बन गया। इसको मैं और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो दिस में भी रिटन एज mu naught upon 4 pi 2 I pi a square upon s cube, ये हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है। अब एज द एलयू ऑफ एस कैन बी रिटन एज, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों के स्क्वायर का सम, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई पाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ और 3, तो 3/2, ठीक है। इन दिस way we got the relation that B is equal to mu naught upon 4 pi 2 I pi a square upon a square plus r square is to the power 3/2, ये फार्मूला आ गया हमारा, यहां तक हम ऑब्टेन कर चुके, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है, for the simplification we can put case number 1 कि केस नंबर 1 में हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि सपोज जो r है, r द वैल्यू ऑफ r इज 0, r को हम 0 पुट कर सकते हैं, r में भी 0, r अगर 0 होगा तो कहां पर एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट P ओवर एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं r को यहाँ 0 पुट कर दूं तो वैल्यू B में भी mu naught upon 4 pi into 2 I pi a square upon a square plus 0, मतलब बस a square raised to the power 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्यूब और इससे कट जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट देखो इससे ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a
यही मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करा था ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर। इससे पहला एक्सप्रेशन जो कैलकुलेट करा था, बस उसमें रेडियस आर हमने एज्यूम करा थी, तो यहाँ आर आर आता है, यहाँ पर ए रेडियस एज्यूम करिए तो वी आर गेटिंग ए। तो ये तो हुआ वन केस, यानी केस का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटीज कि अगर आर जीरो हो तो क्या होगा, आर ग्रेटर हो तो क्या होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, पहला केस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि इफ r is much greater than a, we have to neglect the value of a, हमें a को neglect करना पड़ेगा। तो before that we can write this expression as v is equal to mu naught upon 4 pi 2 I a capital upon a square plus r square raised to the power 3 by 2, as this capital A is pi a square is area of the loop। मैंने क्या कहा इस एक्सप्रेशन में पाई a square को क्या लिख दिया, एरिया ऑफ द लूप, इसका एरिया हो गया a। नाउ r अगर ग्रेटर हो, यानी इसकी रेडियस कंपैरेटिव काफी दूर हम अगर p पॉइंट पर अज्यूम करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें a नेग्लेक्ट करना होगा। वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ a एज 0 इन दिस एक्सप्रेशन। तो वी गॉट mu naught upon 4 pi into 2ia upon a is 0, then r square 3 by 2, 2 से 2 कैंसिल, r क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन हमें जो है मिल जाएगा, वी गॉट दिस रिलेशन। Similarly, we can consider another case also. Here, we are taking the third case here. Yeah, if r is equal to a, then put r is equal to a. It will be mu naught upon 4 pi 2i pi a square upon a square plus a square raised to the power 3 by 2. Now we can simplify it. तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i पाई a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर की पावर 3 by 2, तो 2a टू द पावर 3 by 2 आ गया तो, और a स्क्वायर की पावर 3 by 2 का मतलब a क्यूब आ गया। इस 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, इस पाई से ये पाई कैंसिल, a स्क्वायर से पावर कैंसिल, तो व्हाट वी गॉट म्यू नॉट i अपॉन 2 raised to the power 3 by 2 and 1, it is 5 by 2 into a। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड while r and a are same। So after this we have completed this expression, okay।